Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So, students, in the previous lectures, we have discussed Cartesian product of sets and their question, right? So, today we are going to discuss about relations. So, the second chapter, that is relations and functions. Our topic is relations. What are relations? So, students, in our daily life, we often talk about relations like daughter, father relation, mother, son relations, student, teachers relation. Similarly, we often talk about relations in mathematics like A is greater than B is subset of A. These are relation with each other, right? So students, today we are going to discuss about relations in a detail, right? So let's discuss relation by an example. Let we have two sets, that is set A is equal to A comma B comma C, right? And set B equal to Ali, Bhanu, Binoy, Chandra and Dev. Right? We have two sets, that is set A and set B. Now find A cross B means Cartesian product of two sets. What we will do? A with Ali, A with Bhanu, A with Binoy, A with Chandra, similarly A with Dev, right? So A with Ali, A with Binoy, similarly at the end C with Dev, right? So means इसके हमारे कितने पेयर्स बन सकते हैं, right? Set A has 3 elements and set B has 1, 2, 3, 5 elements. 5 into 3 15 means A cross B के अंदर हमारे 15 ऑर्डर्ड पेयर जो हैं हमारे बनेंगे, राइट? तो ये आ गया हमारा A cross B. Now relation R is equal to bracket. This is a representation of a relation like this, bracket x comma y such that x belongs to A, x belongs to A and y belongs to B, right? And x is a first letter of y. इसका मतलब क्या है? जो y का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? x होगा, राइट? तो हमारा क्या आएगा? A with Ali, right? Like this. A with Ali, A with Bhanu is not possible. B with Bhanu and B with Binoy. B with Bhanu, right? B with Binoy. And next C with first letter of Y, C with Chandra, C comma Chandra. Similarly, that's all, right? तो ये हमारा क्या आ गया? रिलेशन आ गया. A with Ali, B Bhanu, B Binoy and C Chandra. So students, so definition of a relation is a, if we have two non-empty subset, then relation is always subset of A cross B, right? It means relation के अंदर जो भी पेयर्स होंगे वो सारे के सारे A क्रॉस B में इन्वॉल्व होंगे. देखो A विद अली A क्रॉस B के अंदर होगा, B विद भानु भी अंदर होगा. सारे के सारे जो पेयर्स हैं
रिलेशन के जो पेयर्स हैं वो क्या होंगे, ए क्रॉस बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। मीन्स आर इज दैट रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। ये आ गया हमारा रिलेशन। अब इसका नेक्स्ट है कि ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया, रबिंग बेस। अगर हमारे पास दो सेट गिवन है, दैट इज सेट ए एंड सेट बी, एंड दिस रिलेशन इज गिवन, और हमें बोला हुआ हो कि फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो हमारी डोमेन क्या होगी, तो डोमेन क्या होगी, रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, डोमेन, राइट। दैट इज कहां से, रिलेशन के अंदर जो पेयर्स होंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होंगे, हमारे डोमेन होंगे। दैट इज ए बी बी सी, मीन्स ए कोमा बी कोमा सी, दीज आर डोमेन्स। अगर पूछा हुआ हो रेंज, तो हमारी सिमिलरली रिलेशन के अंदर जो हमारे सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रेंज को। दैट इज अली, भानु, विनोय एंड चंद्रा, राइट। सो रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे वो डोमेन, एंड रिलेशन के अंदर जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे रेंज को, राइट। और ऑलवेज कीप इन माइंड, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, दिस वन, and this is known as, B is known as co-domain. So range is always subset of B. मीन रेंज के अंदर हमारे क्या है, अली, भानु, बिनोई, चंद्रा। रेंज के सारे एलिमेंट्स क्या हमारे वो बी, सेट बी में प्रेजेंट हैं। यस, हमारे जो रेंज के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेट बी में प्रेजेंट है। So range is always subset of B, and this B is known as codomain, right? So we have discussed domain, range and codomain, right? अगर स्टूडेंट्स अगर इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर हम इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे आएगी, लाइक दिस। We have two sets, set A and set B. Set A has element A, B, C, and set B has element Ali, Bhanu, Binoy, Chandra and Dev। तो हमारा जो रिलेशन है वो कहाँ है, A with Ali, हमारा रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम बी टू भानु, बी टू बिनोय, राइट, सी विद चंद्रा, राइट। तो इसमें हमारे जो ए बी सी है वो क्या आगे, हमारे डोमेन आगे, और अली, बानु, बिनोय, चंद्रा, ये सिर्फ चंद्रा तक, ये हमारे क्या आगे, रेंज आ गई। और सेट बी के सारे एलिमेंट्स के आगे कोडोमेन आ गई, दीज आर डोमेन। ये हमारे क्या है, रेंज, ये पूरा हमारा क्या है, कोडोमेन, राइट। मान लो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे, मान लो यहाँ पे हमारा डी है, राइट, और डी किसी के भी साथ जो है रिलेशन नहीं बना रहा है। अगर if we have sets that is set A, B, C, D, right, और हमारा ऐसे हमारा जो है रिलेशन बन रहा है, क्या D का रिलेशन किसी के साथ बन रहा है, नहीं, D का रिलेशन किसी के साथ नहीं बन रहा है, मीन्स D is not a domain, right। जिसका रिलेशन जिसके साथ बन रहा है वो हमारे डोमेन और रेंज होगी, राइट। ये आपने हमेशा याद रखना है। इसमें क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, राइट।
एक और हम एग्जाम्पल इसका लेते हैं. Let we have two set, that is a equal to 1, 2, 3, 4 and b equal to 5, 6, 7, 8, and we have given a relation that is r equal to 1, 5, 3, 7, 2, 8. अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमें दिया हो कि फाइंड आउट डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, तो फर्स्ट वी फाइंड डोमेन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट डोमेन क्या लेना है, रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, डोमेन. दैट इज 1, 3, 2 means 1, 2 and 3. These are domain. And range, elements from relation R. Elements in relation R. Second elements in relation R is known as range. That is 5, 7, 8. So this is range. Next is codomain. तो ये हमारा क्या आ गया, सेट ऑफ बी इज नोन एज कोडोमेन, राइट. एंड रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, राइट. क्या रेंज के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं? यस, रेंज के सारे एलिमेंट्स जो है बी में प्रेजेंट हैं, राइट. ऐसे हम इसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर स्टूडेंट्स हमें दिया हो, हमें फाइंड आउट करना हो कि कितने रिलेशंस हमारे ए टू बी बन सकते हैं, तो इसमें हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4. इसमें 1, 2, 3, 4. सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी is equal to 2 की power mn. Number of, this is m, this is n, right. Number of element in set A and number of element in set B. So 2 into number here 4 element 4, 2 into 16. So this is the way of finding the number of relation from set A to set B, that is 2 की पावर m n, राइट. ये हमारा आ गया रिलेशन. नेक्स्ट है हमारा रिलेशन ऑन ए सेट. रिलेशन ऑन ए सेट, पहले हमने क्या डिस्कस किया, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, राइट. अब क्या है, रिलेशन ऑन ए सेट मीन्स रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, राइट. सो लेट वी हैव set A, we have given a set that is A 1, 2, 3, 4 and 5, and we have given a relation that is x comma y bracket such that y is equal to x plus 1, where x and y both are belongs to A. means x और y की जो वैल्यू है वो कहाँ बिलोंग करेंगी, सेट A के अंदर, राइट. सो फाइंड वही डोमेन, रेंज एक्सेट्रा, राइट. तो हमारा क्या आएगा, रेंज क्या आएगी, हमारा क्या है, x एंड y बोथ आर बिलोंग्स टू A, राइट. और y इज इक्वल टू x प्लस 1, राइट. सो इफ वी हैव सेट x A that is 1, what would be the y, 1 plus 1 that is 2. If we have the value of x that is 2, so y is equal to 2 plus 1, 3. Similarly, if we have the value of x that is 3,
x equal to 3, then y equal to 3 plus 1, 4. Right? Similarly, we have the value of x, that is 4. So y will be equal to 4 plus 1, 5. So we have value of x, that is 5. So value of y equal to 5 plus 1, 6. So students, आप मुझे बताएं, क्या मीन्स हमने क्या बोला है, y की वैल्यू भी बिलोंग करेगी a के अंदर. क्या 6 हमारा a के अंदर प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है. राइट? तो हमारे पेयर्स कहाँ तक आएंगे? यहाँ तक. बिकॉज बोथ x एंड y बिलोंग्स टू a, मीन्स x और y दोनों की वैल्यूज हैं जो बिलोंग करेंगी a को. राइट? तो ये हमारा रिलेशन है. अगर हमें बोला हुआ हो फाइंड डोमेन, तो फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन. 1 2 3 4 here domain, and range is equal to second elements in relation are 2 3 4 5. राइट? तो ये हो गया हमारी डोमेन एंड रेंज. और को डोमेन इसमें क्या होगी? ए ही हमारा क्या होगा? को डोमेन होगा. तो ये हमारा आ गया रिलेशन ऑन ए सेट, मीन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए. राइट? नेक्स्ट हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन. दैट इज representation of a relation. There are three ways of representation of a relation. That is, first is roster form, second set builder form, third is visual representation form. Right? First one is roster form, second one is set builder form, similarly third one is visual representation form. Visual representation form. Right? So let's discuss one by one. First one is roster form, or we can, it's also known as tabular form. Right? इसमें क्या है? If we have two set, that is -2, -1, 0, 1 and 2. We have two set, that is set A and set B. 0, 1, 2, 4, 9 and 10. Right? तो हमें इसमें क्या गिवन है? टू सेट्स हमारे गिवन हैं एंड रिलेशन हमें गिवन है x, y such that x belongs to A. Right? X belongs to A, y belongs to B and y equal to x square. y हमारा क्या होगा? x square होगा. और x की वैल्यू हमारी बिलोंग करेंगी a को और y की वैल्यू हमारी क्या करेंगी? b को बिलोंग करेंगी. राइट? सो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? रिलेशन क्या बनेगा? सो x बिलोंग्स टू a मीन्स ये वाली वैल्यू हमारी क्या है? x है और ये वाली वैल्यू हमारी क्या है? y है. राइट? So x is -2, तो y क्या है? x का स्क्वायर, that is 4. और 4 हमारा क्या है ना b में? Yes, y belongs to b, तो y is 4. Is 4 belongs to b? Yes, 4 is belongs to b. Next is x is -1, so y is -1 का स्क्वायर, that is 1. Right? Next one is 0. So y equal to 0 square, that is 0.
and next is x equal to 1, so y equal to 1 to square, that is 1, and if x equal to 2, तो y equal to 2 to 4, right? So this is known as rostrum form, or we can say tabular form. इसमें क्या है, हमें स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, रिलेशन बिल्डअप करेंगे, राइट? तो स्टेटमेंट से हमारे क्या आगे पेयर्स हमारे बिल्डअप हो गए, राइट? हमारे जो पेयर्स बन गए, एंड दिस इज नॉन एज रोस्टर फॉर्म, राइट? वेयर आर x, y such that x belongs to a and y belongs to b and y equal to x square, राइट? अगर इसमें देखें हमारी रेंज क्या आएगी, सॉरी डोमेन क्या आएगी, ये फर्स्ट एलिमेंट इन द रिलेशंस आर डोमेन्स and second elements in the relation are known as range, right? तो ये हमारी क्या होगी, roster form. Next one is set builder form. Next one is, second is set builder form, right? If we have a set A, that is 1, 2, 3, 4 and 5, and set B equal to 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 and 1 by 5, right? और हमें रिलेशन क्या गिवन है, 1, 1, 2.1 by 2, 1 by 3, 4, 1 by 4, 5, ये क्या हमारा रिलेशन गिवन है. इस रिलेशन से मीन्स जो हमने रोस्टर फॉर्म जो हमने अभी डिस्कस करा, रोस्टर फॉर्म से क्या हम करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे, राइट? मीन्स हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे. तो कैसे आएगी, r, x, y such that, अगर हम इसमें देखें तो y क्या है हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ x, राइट? x का उल्टा है हमारा क्या है, y, वेयर y इक्वल टू 1 अपॉन x, राइट? y की वैल्यू क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ x, दैट इज y इक्वल टू 1 अपॉन x, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, राइट? तो ये हमारा बन गया. अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 क्या आएगा, y. अगर x की वैल्यू हमारी 2 है तो y की क्या आएगी, x का अपोजिट, x का उल्टा, दैट इज 1 अपॉन 2, राइट? x की वैल्यू 3 है तो y क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 3, दैट इज 1 अपॉन 3. अगर x की वैल्यू 4 है तो रेसिप्रोकल ऑफ 4 इज 1 अपॉन 4. सिमिलरली एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, राइट? So this is known as set builder form, right? Next is visual representation form. Visual representation तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि कैसे हमने इसको विजुअली हमने शो करना है रिलेशन को, right? Let we have set that is A, B, C, and second is 2, 7, 8 and 9, and relation क्या है given, a, 2, right? a, 8, c, 9. अब हमने क्या करना है, रिलेशन करना है फ्रॉम a टू b. तो इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी, लाइक सेट a एंड सेट b. Set A has element that is A, B, C, and set B has element 2, 7, 8 and 9. अब रिलेशन है A to 2, A to 8, then C to 9. So ये क्या होगी हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A and
from A to B, where डोमेन क्या आएगी, हमने क्या बोला था, रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगी, डोमेन। अगर हमने इस डायग्राम से पता लगाना है तो हमारी डोमेन क्या है, तो हमारी डोमेन क्या आएगी, ए एंड सी, बिकॉज ए और सी ही हमारा क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है, दैट इज ए कोमा सी। अगर यहां से हम देखें तो इसमें भी हमारा रिलेशन क्या आएगा, ए एंड सी। एंड रेंज ये है, रेंज क्या है, किसके साथ जो है रिलेशन बना रहा है, 8 to 2, दैट इज 2, 8 and 9, ये क्या आ गया हमारा रिलेशन। एंड को डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन बी, ये क्या हुआ हमारा को डोमेन, राइट। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, और इसको एरो डायग्राम भी हम कह सकते हैं, राइट। सो डायग्राम के थ्रू भी हम डोमेन, को डोमेन और रेंज जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये आ गया हमारा रिलेशन। नेक्स्ट इज इनवर्स of a relation, right, and this is represented by like this. It doesn't mean 1 upon r, right, always keep in mind r inverse doesn't mean 1 upon r, right। we have discussed that relation को कैसे represent करते थे, like this, x, y such that x belongs to A, y belongs to B, like this हम क्या करते थे, रिलेशन को रिप्रेजेंट करते थे। अगर हम R इनवर्स, दैट इज इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इसमें क्या करेंगे हम, y, x, हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को उल्टा कर देंगे, राइट। इसमें क्या करेंगे हम, एलिमेंट्स को उल्टा कर देंगे, और इसमें क्या होगा, जो रेंज, जो डोमेन होगी रिलेशन के अंदर, जो इसकी डोमेन होगी इनवर्स में क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, और जो इनवर्स की रेंज होगी वो क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ आर, राइट। चलो हम इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। इफ A is equal to x, y, z, and B is equal to 1, 2, 3 and 4, right। और हमें रिलेशन क्या गिवन है, x, 1, y, 2, z, 3, राइट। तो ये हमारा क्या R। अगर हमने R इनवर्स फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को, पेयर्स को उल्टा कर देंगे, जो y है वो x बन जाएगा, और जो x है वो क्या बन जाएगा, y, 2, y, 3, z, राइट। अगर इसकी हम रेंज फाइंड आउट, इसकी हम डोमेन फाइंड आउट करें, किसकी, R की डोमेन क्या आएगी, x, y, z, x, y, z, और रिलेशन की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, 1, 2, 3। अगर हम R इनवर्स की बात करें तो इसमें डोमेन क्या आएगी, 1, फर्स्ट एलिमेंट्स इन रिलेशन इनवर्स, दैट इज 1, 2, 3, एंड रेंज क्या आएंगी, सेकंड एलिमेंट्स, दैट इज x, y, so we have seen here that codomain of R, तो इसमें क्या बन रहा है, रेंज ऑफ इनवर्स, मींस उल्टा हो रहा है, ठीक है। रिलेशन का जो कोडोमेन है वो क्या बन रहा है, इनवर्स का रेंज बन रहा है, राइट। और रिलेशन इनवर्स का जो रेंज है वो अपोजिट है रिलेशन के R के साथ, राइट। ये क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के साथ। सो ये क्या हुआ हमारा इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड relations on a set and representation of a relation, right?
So in the next lecture we will discuss questions of a relation, right? So thank you so much. For more videos, please students like, comment and subscribe my YouTube channel.